Hello everyone, let us start with the botany and production technology of amaranthus. As we know, in the previous lecture we have studied about the amaranthus and its various health benefits in our day-to-day life. Now here in this lecture we will study about the botany. First of all, it is an erect to spreading plant, usually herbaceous annual, of about height 0.3 to 2 meter. Means these plants complete their life cycle within a year, so known as herbaceous annuals. Or this plant germinate, grow, produces the flowers and seeds and die within a single growing season. Second, the stems are erect, often thick and fleshy. Means इसके जो amaranthus के जो stems हैं, they will be erect and fleshy one. The leaves are of variable shape. Means there are more number of species of amaranthus varying in shape as well as in color. First of all, about the shape. The shape may be of obtuse, then erect or various shapes. Normally the color of the leaves is green to purple, मतलब green to purple vary करता है या green to pinkish purple. Then normally alternate, petiolate and entire. The tips are often obtuse. Obtuse का meaning है the tips are rounded or blunt one. पिक्चर में बिल्कुल क्लियरली शो है कि जो इसकी लीव्स हैं वो obtuse हैं. The inflorescence is racemose spikes or axillary or terminal. आप यहाँ पे पिक्चर में क्लियरली देख सकते हैं amaranthus की इन्फ्लोरेसेंस को. जो सबसे टॉप पे है वो है इसकी इन्फ्लोरेसेंस एक्सिलरी और टर्मिनल. सेकेंड वन इज अबाउट द रेसिमोस स्पाइक्स की तरह इसकी इन्फ्लोरेसेंस रहती है. द फ्लावर्स आर स्मॉल, न्यूमरस, रेगुलर एंड यूनिसेक्सुअल. यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का मतलब है द फ्लावर्स आर इम्परफेक्ट. इम्परफेक्ट मीन्स या तो मेल होंगे या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहेंगे. पेंटामेरस मीन्स five sepals, 5 petals, 5 stamens and 5 carpels. Then membranous, usually covered with the membrane like structure. Stamens 2 to 5 placed opposite to perianth part. Filaments either free or united below. Anthers 1 or 2 celled. Carpels 2 or 3. Ovaries syncarpous or superior. सिनकार्पस का मीनिंग है कि जो ओवरी है दैट विल फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल फ्रूट. मीन्स जब मल्टीपल पिस्टल्स फ्यूज्ड होंगे और एक सिंगल ओवेरियल स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे और वो ओवरी का जो स्ट्रक्चर है जो बहुत सारे पिस्टल से फ्यूज होके बनी है वो एक सिंगल फ्रूट की फॉर्म देगी. देन सुपीरियर ओवरी का मतलब है द ओवरी विच इज फ्री फ्रॉम रिसेप्टेकल और द ओवरी विच इज अटैच्ड टू द रिसेप्टेकल एट इट्स बिलो पॉइंट. देन कैम्फाइलोट्रोपस ओव्यूल का मतलब है इसकी ओरिएंटेशन से कि ओव्यूल की ओरिएंटेशन प्लांट्स में किस तरह की, इधर कर्व्ड और बेंट शेप. फ्रूट इज इंडेhiscent एनक्लोज्ड बाय पर्सिस्टेंट perianth part. Fruit is indehiscent का मीनिंग है कि ऐसे fruits which do not open naturally to release the seeds, मतलब उनकी dehiscence नहीं होगी, seed की dehiscence नहीं होगी, और remain closed and intact even varied climatic conditions. Next, the plants are monoecious but dioecious species also occur. जो monoecious plants हैं they are usually male and female reproductive organs constitutes, whereas dioecious means the male and female parts are separate.
The seeds are small and the testa is shiny, black to brown. The plants are cross pollinated by wind-borne pollens. Means कि इसकी जो pollination है किस तरह की pollination है? Cross pollinated means the pollens from one plant fertilizes the ovule of another plant, although some chances of self-pollination often occurs. The extent and degree of cross-pollination is governed by proportion of staminate and pistillate flowers in an inflorescence, and also about the position of inflorescence. Cross-pollination generally depend करती है pistillate flowers की position पे और staminate flowers की position पे. Then about the climatic requirement. In general अगर हम बात करें तो अमरंथस जो है एक warm season की crop है. So in that case अगर हम temperate climate areas में इस crop की duration या इसकी cultivation की तरफ जा रहे हैं तो हम उसकी cultivation करेंगे summers में. और जनरली 20 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है ऑप्टिमम है इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए. ये जो क्रॉप है, जो अमरंथस की क्रॉप है, ये फ्रॉस्ट टॉलरेंट नहीं है. तो अमरंथस में दो तरह की स्पीशीज़ रहती हैं. फर्स्ट वन इज़ शॉर्ट डे स्पीशीज़, सेकेंड वन इज़ डे न्यूट्रल स्पीशीज़. तो शॉर्ट डे स्पीशीज़ की बात करें तो दो शॉर्ट डे स्पीशीज़ में इंक्लूडेड है. फर्स्ट वन इज़ कॉर्डेटस, सेकेंड वन इज़ इडुलस. एंड Amaranthus hypochondriacus, which is a day neutral species. Means very important question from JRF, SRF and NET point of view, that which species of Amaranthus is day neutral species. So Amaranthus hypochondriacus is a day neutral species of Amaranthus. About the soil requirement, this crop requires a pH range of about 5.5 to 7.5 pH. Means acidic pH is required, slightly acidic pH is required for the Amaranthus cultivation. So sandy loam soils with a good drainage or good water holding capacity are generally suitable for the Amaranthus cultivation. About the varietal description. The varietal description vary according to the clipping, according to the color, according to the harvest, according to the edible point of view, that which part is edible. Either seeds are taken as a cereal crop, or second one is vegetative part, that is it's about leaves. As we know, this crop is known as the poor man's spinach. So regarding the varietal description, first one is Coimbatore 1, second one is CO2. The CO series belongs to TNAU Coimbatore. So it is a local type of series from TNAU Coimbatore. In 1968, this variety, or you can say this cultivar, has been developed by the selection method. Mainly इस variety के green part को, means कि हम वेजिटेटिव जो पार्ट रहता है या फिर जो मैच्योर्ड स्टेम है उसी को हम एज ए एडिबल पार्ट लेते हैं. एंड इसकी जो ग्रीन मैटर की यील्ड है 7 to 8 टन्स है. आपने इसका जो एक तो इसकी जो प्रोडक्टिविटी है, कितनी प्रोडक्शन है किस वैरायटी की और उसका एडिबल पार्ट क्या है, ये आपने याद रखना है कि कौन सी वैरायटी को किस तरह से किस पर्पज़ के लिए ग्रो किया जा रहा है. सेकेंड वन इज CO2. CO2 जो है एक लोकल टाइप है. इस वैरायटी को भी सिलेक्शन से ही डोमेस्टिकेट किया गया है TNAU कोम्बटूर से और रिलीज़ किया गया 1976 में. जनरली इस वैरायटी को अर्ली हार्वेस्ट में ही यूज़ करते हैं और इसकी जो ड्यूरेशन है क्रॉप की 25 डेज़ है फॉर टेंडर ग्रीन्स एंड इट प्रोड्यूसेस ग्रीन मैटर ऑफ 10 to 11 टन्स पर हेक्टेयर. Then CO3, in the NET exam, this question was asked that which variety of Amaranthus or which cultivar of Amaranthus is suitable for the clipping purpose. So only one cultivar, that is CO3, is suitable for clipping of tender greens. Then the cultivar tends to begin about of 10 क्लिपिंग्स 10 क्लिपिंग्स इस क्रॉप की ले सकते हैं 20 डेज़ के इंटरवल में.
and this crop provide the continuous supply of tender greens for a period of about 3 months. मतलब 3 महीने तक इस क्रॉप को हम लगातार टेंडर ग्रीन्स की फॉर्म में ले सकते हैं और इसकी जो यील्ड है वो लगभग 31 टन्स पर हेक्टेयर रहती है. CO4 जो एक ऐसी वैरायटी है very different, means it is a green grain type of variety. It is also developed by TNAU. जो इसके seeds हैं they are rich in proteins and essential amino acids. One of the most important essential amino acid, that is lysine, from skin point of view, very important, which is found in CO4 variety. Then about its grain yield, which is 2 to 2.5 ton per hectare in about 80 to 90 days. Next one variety is CO5. CO5 variety is also developed by TNAU and has double color, green to pinkish. About the yield, its yield is 10 ton per hectare. Very important variety of IRI New Delhi, which is a high yielding variety known as Pusa Lal Julai, so known as Amaranthus tricolor, suitable for both summer as well as for rainy seasons. Generally Pusa Lal Julai जो है इसकी फर्स्ट कटिंग जब हम लेते हैं तो लगभग 25 दिनों बाद, सोइंग के 25 दिनों बाद इसकी क्लिपिंग्स ले सकते हैं, या कह सकते हैं आप कि उसकी कटिंग्स ले सकते हैं. और इसकी जो एवरेज यील्ड है समर्स में 490 क्विंटल्स पर हेक्टेयर है और जो रेनी सीजन की यील्ड है वो 450 क्विंटल्स पर हेक्टेयर है. ड्यू टू सम चांसेस ऑफ डिसीजेस ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स द यील्ड इज लेस एज कंपेयर टू समर्स. अबाउट द सीड रेट, तो इस क्रॉप को हम दो तरह से ले सकते हैं, या तो डायरेक्ट सोइंग से जिसे हम ब्रॉडकास्टिंग मेथड बोलते हैं, या फिर ट्रांसप्लांटिंग क्रॉप की तरह. अगर हम इसकी ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं तो यूजुअली इसके जो सीड्स हैं, अमरंथस के जो सीड्स हैं उनको आप मिक्स करेंगे सैंड के साथ फॉर इक्वल प्रपोर्शन. एंड अगर आप क्रॉप को सीड रेट देखें, इसका सीड रेट कितना है डायरेक्ट सोइंग के टाइम, तो ऑब्वियसली ज़्यादा सीड रेट लगेगा, लाइक 2 kg पर हेक्टेयर. और अगर एज ए ट्रांसप्लांटेड क्रॉप ले रहे हैं तो 1 kg पर हेक्टेयर. और अगर आपको सीड क्रॉप लेनी है, ग्रेन अमरंथस लेना है, तो 1.5 to 2 kg पर हेक्टेयर. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 1 ग्राम अमरंथस में कितना सीड पाया जाता है, तो वो है 1250 सीड्स रहते हैं 1 ग्राम अमरंथस में. अबाउट द सोइंग टाइम, नॉर्दर्न इंडिया में जनरली समर क्रॉप में जब इसकी सोइंग करते हैं तो फेब टू मार्च, और रेनी सीजन की जो क्रॉप है वो जून टू जुलाई में लेते हैं. और सदर्न पार्ट्स में अमरंथस को थ्रू आउट द ईयर ग्रो कर सकते हैं. ग्रेन पर्पज से अगर हम अमरंथस को ले रहे हैं तो जनरली जो सोइंग है फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ जून में करते हैं, आफ्टर द फर्स्ट मॉनसून सावर. अबाउट द सोइंग मेथड, जैसे कि मैंने बताया कि इसकी जो सोइंग है वो रहती है या तो ब्रॉडकास्टिंग से या फिर ड्रिलिंग करते हैं, और ट्रांसप्लांटिंग मेथड से. अगर डायरेक्ट सोइंग कर रहे हैं तो सीड को हम 10 पार्ट्स ऑफ सैंड के साथ मिक्स करेंगे फॉर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. क्योंकि इसके जो सीड्स हैं बहुत स्मॉल रहते हैं तो इसकी जो सोइंग है बहुत शैलो नहीं करेंगे, लगभग 1 से 1.5 सेंटीमीटर के बीच ही डीप करेंगे इसकी सोइंग को. देन सदर्न इंडिया में जनरली ट्रांसप्लांटिंग मेथड से ही अमरंथस को ग्रो किया जाता है ऑन लार्ज स्केल. तो इसका जो सीड रेट रहता है वो 1 kg पर हेक्टेयर है. ट्रांसप्लांटिंग करेंगे 20 से 30 दिनों के बाद ट्रेंचेस में, और जो डिस्टेंस रहता है ट्रांसप्लांटिंग के टाइम वो है 20 सेंटीमीटर. जनरली 15 से 20 डेज ओल्ड सीडलिंग जो रहती हैं ट्रांसप्लांटिंग के बाद वो ज़्यादा यील्ड देती हैं और ज़्यादा नंबर ऑफ हार्वेस्ट. अबाउट द फर्टिलाइज़र और इरिगेशन रिक्वायरमेंट, फर्टिलाइज़र्स की अगर बात की जाए तो 25 टन पर हेक्टेयर FYM, नाइट्रोजन 50 kg जो कि स्प्लिट डोजेस में देंगे. मींस कि फर्स्ट वन जो हाफ डोज है वो सोइंग से पहले, और जो रिमेनिंग हाफ डोज है वो 15 दिन सोइंग के बाद देंगे. और जो इसका फॉस्फोरस और पोटाश की डोज है वो फुल डोज देंगे, फुल डोज अप्लाई करेंगे प्लोइंग के टाइम. और इरिगेशन वीकली इंटरवल्स में करेंगे, मींस कि 3 से 5 डेज़ के इंटरवल में समर्स में इरिगेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इसकी कल्टीवेशन के लिए.
पानी जो है बिल्कुल स्लोली और स्टेडली प्रोवाइड करना है इस क्रॉप के लिए, या फिर इरिगेशन जो है बहुत स्लोली करनी है ताकि इसका जो सीड्स हैं वो वॉश ऑफ ना हो जाए। अबाउट द इंटरकल्चर ऑपरेशन, इसके इंटरकल्चर ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली क्रॉप में वीड्स की प्रॉब्लम रहती है। तो फर्स्ट लाइट होइंग, अगर हो सके तो लाइट होइंग करेंगे। उसके बाद वीड को कंट्रोल करने के लिए मल्चिंग को फॉलो करेंगे। जनरली ऑर्गेनिक मल्च भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में शो किया गया है कि किस तरह की मल्चिंग और किस स्टेज पे मल्चिंग करनी है। लगभग जब प्लांट की जो हाइट है वो 10 से 15 सेंटीमीटर की हो जाती है। अबाउट द हार्वेस्टिंग एंड यील्ड, लार्ज सीडलिंग्स को आप हार्वेस्ट कर सकते हैं जब 10 सेंटीमीटर प्लांट की हाइट होती है, और या फिर आप यंग प्लांट्स को ही पुल्ड आउट कर सकते हैं 6 to 8 वीक्स आफ्टर सोइंग। और यू कैन से partially matured plants they can be harvested in a succession, मीन्स थोड़े थोड़े टाइम बाद आप partially matured plants को भी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। लार्ज प्लांट्स आर हार्वेस्टेड कॉन्टिन्यूसली और लीव्स एंड साइड शूट्स आर हार्वेस्टेड इवनली, मीन्स कि जो इसकी यील्ड है लार्ज प्लांट्स की आप उसको कॉन्टिन्यूटी में ले सकते हैं, और लगभग यील्ड 20 से 25 टन पर हेक्टेयर रहती है एक सिंगल हार्वेस्ट में। और अगर कॉन्टिन्यूस टोटल हार्वेस्टिंग या फिर एवरेज हार्वेस्टिंग की बात की जाए तो 30 to 60 टन पर हेक्टेयर है। सो दीज आर सम ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ amaranthus. In previous lecture, I have told you some important questions from 1 to 5 serial number about the grain, that seed or the grain of amaranthus is known as pseudo-cereal crop, or which species color is, which species is used as a seed or which species is used for the vegetative part, so Coryphanthus. Then it is rich in fiber content which is good for digestion. Then amount of vitamin A content is 9200 international unit in amaranthus. So 1 gram of amaranthus contains how many seeds? So it is about 1250 seeds. Second one, leaf spot in amaranthus is caused by Cercospora species. Then it belongs to the family Amaranthaceae, and leaf type of amaranthus is native of Indian origin. Amaranthus is usually a warm season crop but can be also suitable for the cultivation for temperate climate during the summer. So these are some of the important questions which were asked in NET, JRF or SRF exams. So with this I conclude my lecture. So thank you everyone for listening and watching my video. Kindly like and subscribe my channel, Which Horticulturist.